Hello learners, I am going to start the refraction through refracting surface, a spherical refracting surface. It is a part of a spherical refracting medium. It is of two types, convex and concave. Convex spherical refracting surface and another is concave spherical refracting surface. The name of convex and concave is given due to the surface in rarer medium. As for example, this is a refracting surface and this is a medium. Okay, this is a medium and this is denser medium, and here is the rarer medium. Then the convex is in rarer medium. Hence, the name of a spherical refracting surface is given due to the surface in rarer medium. And in this situation, the rarer medium in convex side, and that is why this is a convex spherical refracting surface. Similarly, when a medium is towards the concave side, this is towards the concave side. Suppose that the medium as like this, convex side. This is the denser, this one is the denser medium, and this one is the rarer medium. Rarer medium towards the concave side, and that's why it is known as concave refracting spherical surface. Similarly, this is a curve, then one is the center of curvature is also here, and this is a curve, then center of curvature is here in both cases. And here is the pole, as you know, and the radius of curvature is this. One is the radius of curvature. This is also pole similarly, and this is the capital R, and aperture, as you know, PQ is aperture. Principal axis remains are same as a spherical mirror. Principal axis, center of curvature, pole, aperture, these all are same. And sign convention also. Sign convention I taught you in a spherical reflecting mirror. That means the spherical mirror. At that time, I told you all distances are measured in the direction of incident ray taken to be positive and opposite to the incident ray taken to be negative, and all distances are measured from the pole. Above the principal axis you consider as positive, and below the principal axis you consider as a negative. Okay, means height of image above the principal axis you consider as positive, and below the principal axis consider as a negative. And few assumptions is also here. This is the assumptions for the further derivation. The first is point size object. कोई भी ऑब्जेक्ट हम जो ले रहे हैं वो उसका साइज जो है पॉइंट साइज होगा फर्स्ट. And the second is aperture is a small, not very big. Aperture is a small. And the third one is the incident ray and refracted ray makes a small angle with principal axis.
विथ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे वो जो होगा वो स्मॉल एंगल बनाएगा, और स्मॉल एंगल बनाएगा तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं तो हम tan थीटा को अप्रॉक्सीमेट थीटा हम बोल सकते हैं। स्मॉल एंगल लेंगे तो अपर्चर अगर स्मॉल लेंगे तो आप देखिएगा जब हम लोग कंसीडर करेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये पोल और कोई पॉइंट हम एल लेते हैं LM, तो M और P जो है M एंड P आर वेरी नियर, ठीक है। तो ये चीज हम समझेंगे कि पोल P और M पॉइंट जो है बहुत दूर नहीं है, वो नजदीक है। अगर हम M से कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करें या P से डिस्टेंस मेजरमेंट करें तो लगभग सेम आएगा। तो ये जंक्शंस है, जंक्शंस को आप समझ लिए होंगे। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, उसमें पहला केस है, इसमें 3 केस आएगा। उसका पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, और इमेज कहाँ बन रहा है? डेंसर मीडियम में। इमेज बन रहा है डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रख रहे हैं रेयर मीडियम में। तो सबसे पहले हम लोग को एक डायग्राम बनाना होगा कैसे इमेज बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करेंगे एक कॉन्वेक्स, क्या लिए हैं? कॉन्वेक्स लिए। तो कॉन्वेक्स ड्रॉ करने के लिए ये छोटी सी बात है कि आप डेंसर मीडियम को कॉन्केव सरफेस की तरफ रखिएगा, तो वो आपको कुछ सोचना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये जो बन जाएगा वो कॉन्केव बन जाएगा। उसके बाद जो है डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, एक ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। You must draw with the scale, otherwise the diagram not looks good. And this is a point size object. This is the point size object. This is the object, point size, and this is the pole. Okay. And the center of curvature is here. This is the anywhere center of curvature. Here is the here or somewhere is the say C center, and this is the normal. When a line draw from the center of curvature to center of curvature to a spherical surface, then it becomes normal. Okay, this becomes normal, and a ray incident on a spherical surface from mirror is this. Actually this is in this direction actually, and this angle is incident ray, angle of incidence, and the rays bends towards the normal. This is the normal, then bends towards the normal, and it forms an image in denser medium, looks like this. Here image is formed. This is the image. As you see clearly, this is the image. This one is the image, center of curvature. This is the hair pole, and this is the object. And one construction is also I am drawing here. This is called normal, perpendicular, just construction for the derivation. This is the name is L and the name is M. Okay, if you understand clearly the diagram, then you can draw easily, and you never change the name. Two name, triangle LOC, triangle LIC. आप लोग को एक सजेशन है, ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं, एक सजेशन है कि जो हम नाम लिखे हैं सबका, वो नाम आप कभी हेर फेर मत कीजिएगा। ये अल्फा है, ठीक है, और आई के साथ जो बनाइएगा उसको बीटा लीजिएगा।
और जो सेंटर से बनाइएगा वो गामा लीजिएगा, इसको कभी मत चेंज कीजिएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा यूज कीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो बनेगा उसको गामा यूज कीजिएगा, और जो इमेज के पास बनेगा उसको बीटा यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं करें कि चेंज करने से नहीं बनेगा। आपको याद रहेगा कि ये दो चीज मत चेंज कीजिएगा, ट्रायंगल एलओसी एंड ट्रायंगल एलआईसी, है ना। एकदम फोकस कर रहे हैं, इस पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि नाम को आप चेंज मत कीजिएगा, हर केस में नाम को सेम रखिएगा। और आपको पता ही है कि ये है जो रेरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम की म्यू2 लिख रहे हैं और रेरर मीडियम को म्यू1 लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब शुरू होता है आप लोग का डेरिवेशन का कहानी। देखिए, हम नाम अगर चेंज नहीं कीजिएगा तो हर जगह ट्रायंगल एल ओ सी, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है एल आई सी, इसलिए बोल रहे हैं कि नाम को मत चेंज कीजिएगा। हर किसी केस में हम यही कंडीशन लेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल एल ओ सी, ट्रायंगल एल ओ सी कहाँ है, देखिए एल यहाँ है, ओ यहाँ है, सी यहाँ है। तो एल ओ सी जो आप देख रहे हैं और ये जो आपका ये एंगल शायद आपको दिख रहा होगा, ये एंगल आर है, ठीक। लेकिन एल ओ सी में आई जो है एक्सटीरियर एंगल है, इसमें आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल, और उस पे एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस क्या होता है, एंगल 2 होता है, ठीक। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो इस केस में भी देखिए कि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है आई, तो ये अल्फा और गामा के सम के बराबर होगा, अल्फा एंड गामा, ठीक है। हम सम के बराबर नहीं दिए। अभी हम बोले थे कि ये अल्फा एंड गामा इज वेरी स्मॉल, hence we can write I is equal to tan अल्फा प्लस tan गामा। क्योंकि I बहुत छोटा है अल्फा एंड गामा, इसलिए I को हम अल्फा प्लस गामा ना लिख के tan अल्फा प्लस tan गामा हम लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा नियर अबाउट है tan अल्फा का और गामा नियर अबाउट है tan गामा का। तो I इज इक्वल टू आप लिखेंगे tan अल्फा क्या होगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, tan अल्फा को लिख रहे हैं दिस एंगल, ठीक है, tan अल्फा। तो lm बाई mo प्लस tan गामा क्या है, lm बाई mc, दिस lm बाई mo प्लस lm बाई mc, ये आपका I का वैल्यू निकला, ठीक है। इसको अभी कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, एक और भी कर सकते थे आप कि mo जो है वो नियर अबाउट है किसका, PO का, एंड MC नियर अबाउट है किसका, PC का। सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो मतलब I इक्वल टू lm अपॉन PO प्लस lm अपॉन PC, you can write the equation number 1. And now in triangle या from triangle LIC, नाम नहीं चेंज कीजिएगा, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप नाम नहीं चेंज करेंगे। ट्रायंगल LIC एंड देन गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, तो गामा को आप लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल। तो गामा ले लिए तो क्या बचा, R प्लस बीटा। लेकिन हमको गामा से हमको कोई मतलब हमको R निकालना है, तो R को आप लिख सकते हो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। और चूंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो R को आप लिखोगे tan गामा और माइनस tan बीटा। तो सिमिलरली tan गामा को अभी आप लिखे थे lm बाई mc, तो lm बाई mc आप लिख दीजिए,
और माइनस क्या लिखेंगे हम, tan बीटा, बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, Lm बाई एम आई, Lm बाई एम आई। तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं कि mc जो है अप्रोक्सीमेट pc है एंड mi जो है अप्रोक्सीमेट क्या है, pi है। तो r इक्वल टू हो जाएगा Lm बाई pc माइनस Lm बाई pi, इक्वेशन नंबर 2। ओके, there are two equations are here. One is this I and there is R. And from a Snell's law, as you know, from a Snell's law, according to a Snell's law, the sine I by sine R is equal to the refractive index of second medium by refractive index of first medium, and it becomes mu1 sine I is equal to mu2 sine R. If aperture is small, then I and R is also small, and I and R is also small. Hence, mu1 I equal to mu2 R. Then mu1 and the value of I is Lm by Po, Lm by Po equal plus Lm by Pc. Okay, Lm by Pc equal to mu2 Lm by Pc, Lm by Pc minus Lm by Pi. This is, and again we can write mu1 Lm cancel out, then it becomes mu1 by actual Po, not Mo. This one is the Po. Lm by mu1 by Po plus mu1 by Pc is equal to mu2 by Pc minus mu2 by Pi. Okay, and the value is mu1 by, final value is mu1 by Po minus or plus mu2 by Pi is equal to mu2 minus mu1 by Pc. This is the equation. This is the valuable equation and you name it capital A. Okay, using sign convention, PO is equal to minus U, as you write. Pi is V. U means what? U means this distance is U, means opposite to the incident ray, and V is in the direction of incident ray, and that's why it is in negative direction and it is positive. Then V is positive, and PC is also positive because this is the R. Because R is the distance from pole to the center of curvature. This is the R, pole to center. Then it is also a positive, means U only negative, V is positive, okay, and R is also positive. And finally, we put the value minus mu1 by U plus mu2 by V equal to mu2 minus mu1 by R. This is your result. Okay, one result you may also write here. If you divide this, then mu1 upon mu1 by U plus mu2 upon mu1 by V is equal to mu2 by mu1 minus mu1 by mu1 by R. Then it becomes minus 1 by U plus mu by V equal to mu minus 1 by R. This is also valuable equation. Okay, and here is I am using mu2 by mu1 equal to mu. Now this is the second case. In first case the image is found real and here the image is found virtual, and object is also in radar medium and image is also found in radar medium. And just you see here, this is a
convex spherical surface. This one is. This is here mu2. This one is the mu1. Here is the object. Here is the object. Here is the center of curvature. And as you know, this is the normal from the center element line joining from the normal to the curvature is the normal center to this point is, and object is just passing from incident ray from O to this point. This point. Diagram is very important in this chapter. If you draw logically, then you can find very easy things. And just like this ray is actually bends towards the normal, but it is not actually at that amount which can form the real image. Okay, and that's why it is the virtual image. As like this. This is the, and the backward direction where the meeting on the principal axis is the image. Is the image at this point. Image is formed at this point. This is the image, virtual image. The rays goes in denser medium, but it is not actually so large angle of refraction is very large and it cannot meet at the principal axis. That's why one ray coming from this and for this, and other ray is this one, and this is the image formed when we draw backward from the refracted light. And this diagram explains lots more. As you can see here, the naming it, the name is, you can draw a perpendicular line as previous. This one is the L, this one is the M, this one is the P. As you can see, the distance from here to here is capital R, and this distance is U, and this distance is V. As you can see, object incident ray in this direction. Here V is taken in as negative, and U is taken as also negative. Okay, but R is taken as positive because R in the direction of incident ray, and the value is just like MC approximate equal to PC, and it is equal to R in plus sign. Okay, and MO near about to PO, MO near about to PO are considered as minus U, and similarly MI near about to PI, and it is considered as minus V. This is the sign convention. This is the sign convention. As you see the diagram, again the triangle, there are two triangles here also, LOC, and the naming is same. Here is the alpha for the object, beta for the image, and gamma for the C. It cannot be changed. If you can change, then little bit confused somewhere, and that's why. From triangle LOC, and in triangle LOC, this one is the LOC, and this is the angle I. No, this one is the angle I. This one is the angle I. Then I is the exterior angle here, exterior angle, and I is equal to alpha plus gamma here. This one is LOC, this one is, and then alpha plus gamma, and as you know, the angle is very small, tan alpha plus tan gamma, and it becomes Lm by what? I can write directly PC plus Lm by
gamma is Lm by naught, alpha is Lm by pu, Lm by pu, and this one is the Pc. Okay, this is equation 1. And from triangle LIC, देखिए बहुत आसान है, अगर एक बार आप एंगल वगैरह चेंज नहीं करेंगे नाम, तो आप एकदम आराम से स्मूथली जा जाइएगा, और बहुत इजी है, तो बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है। देखिए ये ट्राइंगल आपका बन रहा है, ये ट्राइंगल देखिए, ये है आपका L, ये है I, ये है C, ये ट्राइंगल देखिएगा, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, किसका, बीटा और गामा का। तो R जो होगा, R इक्वल टू, उसको आप क्या लिखेंगे, बीटा प्लस गामा लिखेंगे, क्योंकि R एक्सटीरियर एंगल है। आप यहाँ लिख सकते हो कि R क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल LOC, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल LIC। तो इस केस में आप R का वैल्यू क्या लिखेंगे, बीटा प्लस क्या, गामा। तो आप लिख दीजिए इसको tan बीटा प्लस tan गामा, बहुत आसान है, बस tan बीटा क्या कीजिए, आप इसको Lm लिख दीजिए, अब बाई Lm बाई डायरेक्ट आप कर सकते हैं PI, कितना आप लिखिएगा, बगल में हम सारा कन्वेंशन कर ही दिए, tan गामा भी लिखिएगा तो Lm बाई PC, हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस इतना ही स्टेप करना है, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है, एक ट्राइंगल LOC लेना है, एक ट्राइंगल LIC लेना है, और थर्ड सेक्शन में स्नेल्स लॉ लगाना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, बस इतना ही करना है। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन R। अब जानते हैं कि अपर्चर छोटा है, इसलिए I और R लिख सकते हैं। तो I का जो वैल्यू है हम लिख देंगे इक्वेशन 1 से कि Lm बाई PO प्लस Lm बाई PC इज इक्वल टू म्यू टू, हम लिख सकते हैं Lm बाई PI और प्लस Lm बाई PC, एंड दिस वन इज म्यू1 बाई PO प्लस म्यू1 बाई PC is equal to mu2 by pi plus mu2 by pc, and this one is the mu1 by po minus mu2 by pi, mu2 by pi is equal to mu2 minus mu1 by pc. This is also very important equation number B. Okay, and putting the sign convention by the value mu1 by PO is minus u, then you can write here minus u, and here is also mu2 by minus B is equal to mu2 minus mu1 by R. Then you can write here minus mu1 by u plus mu2 by v, and is equal to mu2 minus mu1 by r. Actually this is the same as the previous, and if you divide mu1 on both sides, then you get 1 by minus 1 by u plus mu by v is equal to mu minus 1 by r. This is the same result as the first case. लोग को आसान लग रहा होगा मेरे ख्याल से। अब तो बस क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, ट्राइंगल LOC लेना है, ट्राइंगल LIC लेना है, इन दोनों से IR निकाल देना है, स्नेल्स लॉ लिख देना है, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर देना है, हो गया है ना। इतना भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये रिफ्रैक्शन चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन का डाइवर्सिटी आता है, बहुत ज्यादा। कभी स्फेरिकल बॉल दे देगा, कभी स्फेरिकल टाइप का कोई बबल्स दे देगा, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इज वर्चुअल, एंड इमेज इज वर्चुअल। और केस वही कॉन्वेक्स का है, किसी और का नहीं,
कॉन्वेक्स का ही हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग यूज करेंगे कौन सा, वही कन्वेक्स। कन्वेक्स बनाने के लिए आपको पता है कि हम लोग इस तरह का एक सरफेस लेंगे और ये आपका डेंसर मीडियम शो करेगा, जो μ2 होगा और इधर क्या होगा, μ1 होगा। ठीक, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस तो पहले हम बनाएंगे ही बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। डायग्राम बहुत मायने रखता है, इस डायग्राम को हम बहुत सावधानी से बना रहे हैं, आप लोग भी घर पे सावधानी से बनाइएगा। तो ऑब्वियसली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट साइड ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ही हमको मालूम चलता है कि ऑब्जेक्ट इधर रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये जो है इस तरह से हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे शो किए। अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इसको जाना चाहिए था, सपोज दैट इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, है ना, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बेंड करेगा कहीं ना कहीं इस तरह से, ये ऐसे बेंड करेगा, जो बैकवर्ड ड्रॉ होगा जहां मिलेगा यही इमेज कहलाएगा। ये इमेज बहुत सावधानी से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को पहचानना होता है, नहीं तो आपका हमेशा कंफ्यूजन होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है। सबसे पहले पोल आप समझ रहे होंगे, पोल जो है, अब इंसिडेंट रे इधर है और इमेज देखिए इस केस में आप देख रहे हैं कि ये तो यू तो आपको हर हाल में जो देख रहे हैं आप, ये यू है और ये आपका भी होगा, ठीक, और ये आपका आर होगा। तो ये तीन डायरेक्शन जो है सब निगेटिव हो जाएगा, है ना। और एक आपका परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर है ना, थोड़ा स्केल यूज कर देते हैं ताकि परपेंडिकुलर थोड़ा भी टेढ़ा हो जाता है ना तो ट्रायंगल देखने में ठीक नहीं लगता। ये अब सही, ये परपेंडिकुलर देखिए बहुत भाग रहा था, ठीक है। और ये आपका नाम हो गया एल और ये नाम हो गया एम, थोड़ा और इधर आता है, ये थोड़ा और इधर आता है। हाँ अब सही है, ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया, ठीक। और ये तो आपका सी वाला जो एंगल है, आपको पता है ये गामा होता है, ऑब्जेक्ट जो बनाता है एंगल उसको अल्फा कहते हैं और जो इमेज बनाता है एंगल उसको बीटा कहते हैं। इमेज क्या बनाएगा एंगल, किस डालते हैं, जब भी इमेज को लीजिएगा तो बीटा, ऑब्जेक्ट को लिखिएगा तो अल्फा, सी को लिखिएगा तो गामा, ये मत भूलिएगा एकदम। और तो क्या चीज नहीं भूलने का है, ट्रायंगल एलओसी और ट्रायंगल एलआईसी, नाम मत चेंज कीजिएगा, आप लोग का आदत है डिफरेंट दिखाने में नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा लूज होता है, आपको बात नहीं। अब देखिए, अब इसमें पकड़ना है कि आई कौन होगा, आर कौन होगा, ठीक। तो ये आप इंसिडेंट करवा रहे हैं और ये आपका नॉर्मल है, ठीक, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये आपको पकड़ना होगा कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखिए ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ, यहाँ से हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अच्छा ये तो क्लियर है, ये आपका आर है, ये तो आपका क्लियर है आर, ठीक। और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये आपका आई होगा, ठीक है। अब दो ट्रायंगल, चलिए चला शुरू, ठीक है। अच्छा साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, साइन कन्वेंशन अच्छा रहेगा, एक ही साथ सब हो जाएगा। साइन कन्वेंशन तो सबसे पहले आपको तो पता है कि अगर MO होगा तब भी हम PO लिखेंगे, और PO चूंकि इंसिडेंट इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है तो माइनस ई। उसी तरह से अगर हम MI लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा PI, अपर्चर छोटा है इसलिए तो इसको वैल्यू भी माइनस भी होगा। और एक और है MC, तो MC को ना लिख करके हम PC लिखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस R, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अल्फा जो है बहुत छोटा होता है, तो अल्फा नियर अबाउट 10 अल्फा होगा, और अल्फा बीटा गामा जो भी हो सब ये 10 के बराबर होगा। एक साथ समझा दे रहे हैं
ताकि हमको बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। एक और आपको जानते हैं कि आई ये स्मॉल होता है, ये लगभग साइन आई के बराबर होगा, और आर जो है इसलिए कहते हैं ना कि अजम्पशंस मानने का मतलब है कि जितने भी लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, ये सब जितने भी फार्मूलाज हैं वो फार्मूली एक्चुअली, तो वो जो है सारे के सारे जो है अप्लीकेबल है थिन लेंस के लिए, स्मॉल अपर्चर के लिए। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये सब फॉर्मूला लार्ज में गलत हो जाएगा, होगा तो थोड़ा बहुत गलत होगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गलत होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग अजम्पशंस करके बनाते हैं। अब आते हैं ट्राइंगल LOC। जैसा कि आप जानते हैं इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है कि आप L लीजिए, O लीजिए, C लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्फा एक्सटीरियर एंगल है। अब यह ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसी को पकड़ना है बस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं कि ज्योमेट्री से चल रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस गामा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ हमको आई निकालना है, अल्फा माइनस गामा लिख देते हैं। तो आप इसको tan अल्फा माइनस tan गामा लिखेंगे। LM तो होगा ही, परपेंडिकुलर है वो, और अल्फा है तो ऑब्जेक्ट का होगा, तो सीधे PO लिख दीजिए। यहाँ भी LM होगा, और ये गामा क्या है C का, तो PC लिख दीजिए। डायग्राम देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इक्वेशन 1 बन गया। उसी तरह से ट्राइंगल अब LIC लेंगे। अब कितना आसान लग रहा है, जब एक बार आप लिख देते हो ना तो आसान हो जाता है। LIC। अब यहाँ इस केस में देखिए, ये L है, ये I है, ये ट्राइंगल देखिए। और इस ट्राइंगल में आप गौर कीजिए कि ये अगर R है तो आई थिंक ये भी R होगा। ये गौर से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये R होगा। अब ये R है तो बीटा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो डायग्राम बस देखिए, बीटा यहाँ एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा। ये लाल वाले एरो बनाए हैं, ये R है, रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये R है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये भी R है। आप गौर से देखिएगा, तो इतना ही पकड़ना है। ये R और गामा इंटीरियर हो गया किसका, LIC का। तो बीटा एक्सटीरियर हो गया। तो अब बीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, R प्लस गामा, यानी कि R इक्वल टू क्या लिख देंगे, बीटा माइनस गामा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan गामा। थोड़ा समझना है, समझ के लिखना है वो, बस ये बस इतना ही समझ के लिखना, कहाँ पर क्या होगा। ये तो LM होता ही है, कुछ कंफ्यूजन नहीं। बीटा है इमेज का तो PI, गामा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, C का तो यहाँ PC। अब कुछ नहीं करना, हो गया, कहानी खत्म। अब थर्ड जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ये तो साहब आएंगे नहीं आएंगे, स्नेल्स लॉ है ना। इसको साइन R इज, स्नेल्स लॉ लिखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेकेंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम लिखिएगा। μ2 μ1 से कोई मतलब नहीं है। तो सेकेंड मीडियम कौन हुआ है, यहाँ μ1 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर μ1 बाई μ2 लिखा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड मीडियम नाम पर मत जाइए, μ1 होगा कि μ2 होगा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिसमें इंसिडेंट रे रह रहा है वो फर्स्ट मीडियम है, और जिसमें रिफ्रैक्ट कर रहा है वो सेकेंड मीडियम हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा, μ2 इंटू साइन आई इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। जरा सा भी उल्टा हो जाएगा तो रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो μ2 इंटू आई लिखिएगा और μ1 इंटू आर लिखिएगा। तो आई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, LM बाई PO माइनस LM बाई PC इज इक्वल टू μ1, और R के जगह पे निकाले हैं हम लोग LM बाई PI, LM अपॉन PI माइनस LM अपॉन PC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका μ2 बाई PO माइनस μ2 बाई PC इज इक्वल टू μ1 बाई PI और माइनस μ1 बाई PC, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो μ2 बाई PO और माइनस μ1 बाई PI इज इक्वल टू आप लिख सकते हो μ2 माइनस μ1 बाई क्या PC। ये तो अब साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं μ2 बाई माइनस U प्लस μ1 बाई V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बाई R।
ठीक है। इसमें थोड़ा चेंज आने वाला है, माइनस म्यू टू बाई ई यू प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। इसमें एक चेंज आएगा, कौन सा चेंज देखिएगा। अब हम म्यू वन से डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो ये जो म्यू वन से डिवाइड कीजिएगा तो ये अब आ जाएगा माइनस म्यू बाई यू। ये अभी नहीं आया था, वहां पर वन बाई यू आया था, यहाँ पर माइनस म्यू वन यू आ रहा है, और ये तो वन बाई वी होगा और इक्वल टू ये केस में वन माइनस म्यू बाई आर है। तो थोड़ा इक्वेशन यहाँ चेंज हुआ है। चेंज होने का वजह ये स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में जो म्यू वन बाई, पहले केस में म्यू टू बाई म्यू वन लिख रहे थे, लेकिन अभी दिख रहा है म्यू वन बाई म्यू टू, इसलिए वहीं से चेंज हुआ है, इसके वजह से चेंज आ गया है, लेकिन आप उसको यूज करना है सावधानी। तो कनकेव स्फेरिकल सरफेस में सारा चीज वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करने वाला है। ये डेंसर मीडियम इधर होगा, ये देखिए ये जो है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम। अब इसमें क्या करना है, वही जो पहले करते आए हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हुए एक जो है हम इस तरह का एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ताकि उसी के अनुसार रिफ्रैक्शन दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ किए। एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लीजिएगा तो ऑब्वियसली कि नॉर्मल से जाएगा दूर, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। जब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ड्रॉ अगर करते हैं तो जाएगा किधर, जाना चाहिए तो इसको स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये जो है बेंड करेगा, बेंड करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड जा करके कहीं ना कहीं मिट करेगा, जहाँ मिट करेगा वही इमेज होगा। डायग्राम अगर क्लियर हो जाएगा तो झंझट खत्म। उसके बाद आप जो देख रहे हैं, ये जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो करते आए हम लोग, ठीक है। ये कौन सा एल होगा, ये एम होगा, ये क्या होगा पी होगा, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, ये जो डिस्टेंस आप लीजिएगा ये क्या कहलाएगा यू, ये क्या कहलाएगा भी, ये क्या कहलाएगा आर। अब देखिए इंसिडेंट रे इधर है, तो इसमें भी यू भी आर आपका सब जो होने वाला है, यू भी आर ये सब निगेटिव होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि और वो जो आप लेते हैं हम लोग कि एम ओ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या, पी ओ इज इक्वल टू कितना माइनस यू, और जो एम सी लेते हैं अप्रोक्सीमेट पी सी, ये भी माइनस आर होगा, और एम आई जो लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी आई होगा, और ये माइनस भी लेते हैं। हो गया सिंपल। अच्छा एंगल का नाम वही रहेगा ट्राइंगल का, एल ओ और क्या सी। तो सी को हम लोग गामा मानते हैं तो गामा मान लीजिए, इसको मानते हैं आप बीटा तो बीटा मान लीजिए, इसको आप मानते हैं अल्फा तो अल्फा मान, कहीं कोई चीज नहीं है ना। बस आप बनाते जाइए और क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, आप कदम आराम से निकलते चले जाएगा। अब जो है इस केस में खोजना है किसको, अब आई और आर को खोजना है। ये आई किधर होगा, आर क्या होगा, ये नॉर्मल है देखिए, और ये है, तो देखिए इस ध्यान से देखिएगा, तो ये एंगल आपका आई कहलाएगा, ये एंगल, ठीक है। अब आर, तो देखिए ये एंगल आपका आर, थोड़ा खोजना है इसको, ये जो एंगल बन रहा है थोड़ा इसको हम और हटा करके बनाते हैं, तो थोड़ा और बड़ा जाएगा ना, दिखेगा ये आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये नॉर्मल है आपका, और ये जो एंगल बन रहा है ये आपका आर है, बस इसी को पकड़ना और क्या। तो ये आर है तो ऑब्वियसली ये देखिए ये आपका ये लाइन है, ये लाइन है, तो जो आर होगा ये होगा आर, बस ध्यान से खोजना है, खोज लीजिएगा कहानी खत्म। अब बस आसान काम हो गया। एक बार और कहाँ ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है आई आर को खोजते समय, एक ध्यान रखना है ट्राइंगल एलओसी ट्राइंगल एलआईसी का जो एक्सटीरियर एंगल है किसके सम के बराबर होगा, और एक जगह ध्यान रखना है स्नेल्स लॉ लिखते समय। स्नेल्स लॉ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मीडियम अगर आप कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
नेमिंग में जो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो हम रेयर मीडियम को म्यू1 हमेशा लिए हैं, डेंसर को म्यू2 लिए हैं, तो वही लेंगे। रेयर को म्यू1 और म्यू2 जो हम ले रहे हैं उसी को हम अभी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ले लें कि ट्राइंगल LOC जो हम लेते आए हैं अभी तक, LOC कहाँ है, LO और ये C है, देखिए LOC। अब ध्यान से देखिएगा तो अल्फा आपका यहाँ एक्सटीरियर एंगल है, बस ये खोज लिए ना, काम खत्म हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो अल्फा बराबर है गामा प्लस आई के, या आई प्लस गामा करिए। तो आई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अल्फा माइनस गामा, ऐसे, ठीक है, इक्वल टू, फिर वही चीज अब इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लिख देंगे अल्फा किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए हम कुछ देख भी नहीं रहे डायग्राम, गामा किसके लिए होता है, पीसी के लिए, मैंने सेंटर यहाँ पीसी लिख दिए, बाकी सब कहानी समझाया हुआ, इक्वेशन यही पर वन होगी। अब ट्राइंगल LIC जो हम जानते हैं LIC, अब ये L हुआ, ये I हुआ, C हुआ। अब देखिए इस केस में बीटा आपका एक्सटीरियर है, बीटा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आप याद रखेंगे, कितना आसानी से आपको समझाए हैं। तो आप जो है एक्सटीरियर एंगल हुआ कौन, बीटा, तो किसके बराबर है, तो बीटा बराबर है इसके R प्लस गामा का, R प्लस गामा का। तो जो R होगा वो बीटा माइनस गामा होगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं tan बीटा माइनस tan गामा इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं देखना है, बीटा किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं इमेज के लिए, सॉरी, तो ये PI, और गामा किसके लिए, सेंटर पर देखिए PC लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं है यार, इसको खाली आप डरते हैं, बहुत लोग डरता है ना, इसको तो देख ही के डरता है, अरे कितना डेरिवेशन, कुछ नहीं डेरिवेशन, एक बार आप माइंड मेकअप कर लो ना, उसके बाद कुछ नहीं है। अब करे कीजिएगा ही नहीं तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं, लाइलाज बीमारी है, जो नहीं पढ़ता है उसका तो लाइलाज बीमारी है, उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो खुद जो न्यूटन साहब बहुत सा काम किए हैं इस पे, लाइट पे, और भी साइंटिस्ट सब काम किए हैं, वो भी समझाने चलाएंगे डायरेक्ट तो बड़ा मुश्किल होगा समझाना। चलिए, तो अब इसमें स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या लिखिएगा कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान देना होगा, अब सेकंड मीडियम में वही आ गया, μ2 बाई μ1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो μ2 बाई μ1 भी लिखिए। तो डायरेक्ट कर देते हैं μ1I इक्वल टू μ2R, I का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो μ1I जो हो जाएगा lm बाई PO माइनस lm बाई PC इज इक्वल टू μ2, और ये हो जाएगा lm बाई PI माइनस lm बाई PC, ठीक है, lm सब में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा μ1 बाई PO माइनस μ1 बाई PC इज इक्वल टू μ2 बाई PI माइनस μ2 बाई PC। तो आप अब देख रहे हैं, ये तो रिजल्ट आपको नहीं, अभी नहीं, इसको रहने दीजिए। अभी जो है इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे, μ1 बाई PO माइनस μ2 बाई PI, ठीक है, इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस μ2 बाई PC प्लस μ1 बाई PC, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, है ना, कौन रिजल्ट, μ1 बाई PO माइनस μ2 बाई PI इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई PC। ये रिजल्ट आपको भविष्य में काम आने वाला है, इसीलिए इसको ABCD कर दिए, ठीक है ना। 3 केस पहले था, ये चौथा केस चल रहा है ना, तो ये D हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, μ1 PO को क्या लिखे हैं हम लोग, माइनस U, तो यहाँ माइनस U लिख दीजिए, V को भी हम माइनस में लिखे हैं तो प्लस कर दिए, तो μ2 बाई V कर दिए, μ1 माइनस μ2 लिखे थे, PC को क्या लिखे हैं माइनस R, तो माइनस R कर दीजिए, ठीक है। तो अब इस केस में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये μ2 माइनस ये तो हो जाएगा, मतलब माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, ये तो यही से हो गया, ठीक है। अब μ1 सब में डिवाइड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1 बाई U प्लस μ बाई V इक्वल टू
म्यू माइनस 1/r। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नाम से ही लग रहा है ये एक ऐसा फॉर्मूला जो लेंस बनाता होगा एक पार्टिकुलर फोकल लेंथ का, इसलिए इसको बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें भी वही एजम्पशंस होगा कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे, अपर्चर बहुत छोटा लेंगे, है ना, और वो जो हम लोग एजम्पशंस करते थे कि एम और पी बहुत नज़दीक होगा तो एम ओ पी ओ के अप्रॉक्सीमेट लेंगे। ये सब एजम्पशंस है, इसको आप लोग डेरिवेशन करते समय लिख लीजिएगा। और इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 5 नंबर में ये आता है 5 मार्क्स में, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और इससे बहुत सारा सवाल भी बनता है कंपटीशन में, तो और खास करके किसी लेंस को हम लिक्विड में डाल दिए तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ढेर सारा जवाब इसमें मिलने वाला है। तो ये है कुछ नहीं, लेंस जो अभी पढ़ा है हम 2 सरफेस पढ़ा है, एक कॉन्वेक्स पढ़ा है, एक कॉनकेव पढ़ा है। तो कॉन्वेक्स में भी 2 केस, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है उसके लिए पढ़ा है, और जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है उसके लिए पढ़ा है। तो लेंस जो है 2 स्फेरिकल सरफेस का, 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक तरह के कॉम्बिनेशन है। लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किसी किसी में 1 भी होता है, वो बाद में बात करेंगे, है ना। कुछ ऐसे लेंस है जिसमें एक ही कर्व होता है, एक प्लेन होता है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि अगर लेंस बनाना हो तो 2 कर्व सरफेस लेंगे और दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग लेंस, ठीक है। लेंस भी कई प्रकार के होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर ही देते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस क्या होता है, लेंस कहता है कि लेंस जो है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट होता है जो कह सकते हो आप इसको कि एटलीस्ट 1 सरफेस इज स्फेरिकल, ठीक है, एटलीस्ट 1 सरफेस, दोनों हो तो ठीक, लेकिन एटलीस्ट 1 सरफेस इज स्फेरिकल, ओके, दैट इज कॉल्ड द लेंस। ये जो आप बनाते हो, बहुत बार लेंस भी बनाया होगा, तो ये जो लेंस बनाते हैं इस केस में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका होगा और एक सेंटर कर्वेचर इसका होगा। 2 स्फीयर है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक स्फीयर इधर होगा और एक स्फीयर इधर होगा, देखिए ऐसे। तो इसका जो ये स्फीयर है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसका जो स्फीयर है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, C1 और C2, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये R1 और R2 होगा, ये R1 है और ये R2 है, ठीक। एक्चुअल में आप पोल से भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से भी ले सकते, लेते डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर R1 और R2 जिसमें इक्वल हो, ठीक है, तो अगर ये कन्वेक्स है तो इसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें R1 R2 क्या हो, इक्वल हो जाए, तो बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगर नहीं इक्वल हो तो सिंपली कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा लेंस हो, उसी तरह से इसमें भी है, देख लीजिए यहाँ भी वही बात है, गौर से देखिए, ये भी एक सरफेस बना रहा है, ये भी एक सरफेस बना रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। नाम देने का तरीका है कि अगर ये पहला स्फीयर है तो C1 लिखिए, ये दूसरा स्फीयर तो C2 लिखिए, ठीक है, नाम देने का कोई। तो इस पॉइंट से, ये भी ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस पॉइंट से आप R1 लीजिएगा और इधर से क्या लीजिएगा, R2। इस केस में भी R1 और R2 अगर इक्वल है तो इसको बाई कॉनकेव कहते हैं, बाई कॉनकेव कहेंगे, दिस इज द बाई कॉनकेव। अब ये तो हो गया। अब इसी लेंस में अगर एक सरफेस प्लेन हो जाए तो ये कॉन्वेक्स साइड प्लेन है। एक्चुअल में ये जो सरफेस आप देख रहे हैं तो 2 वाला है, ये 1 R1 इसमें इंफिनिटी है, मतलब प्लेन का जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस इंफिनिटी है, और R2 तो कुछ ना कुछ होगा, जिसका बड़ा होता है रेडियस और उसी को पहले लिखते हैं, तो पहले इसका नाम लिखेंगे प्लेनो और तब लिखेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है, इसका नाम पड़ गया प्लेनो कॉन्वेक्स। और अगर इस तरह से आ गया ऐसे तो इसका जो नाम होगा इसको हम नाम देंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐसा बना दे ये सरफेस ऐसे और एक सरफेस और बना देते हैं इस टाइप का ऐसे, तो क्वेश्चन अब ये बनता है
कि कौन क्या है। दोनों तो देखने में एक ही लग रहा है, चाहे इसको उल्टा कर दे इसको, तो नाम अलग अलग है। कैसे नाम अलग है, देखिए ये कॉनकेव सरफेस बाहर में, ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो आप देखिएगा कि इसका और इसका, ये दोनों का देखना होगा कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर में से किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको कंसीडर करना होगा कि मान लिया जाए ये सरफेस जो आप देख रहे हैं, ये अंदर है, ये बाहर है, जो भी, अगर कॉनकेव का रेडियस मान लीजिए, हम दोनों केस में मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स को R1 मान लीजिए और कॉनकेव को R2 दे दीजिए, आए नाम दे दें। तो अगर R1 बड़ा है, मतलब कॉनकेव बड़ा है किससे, कॉन्वेक्स बड़ा है किससे, कॉनकेव से, तो नाम पड़ जाएगा इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि R2 बड़ा है किससे, R1 से, R2 बड़ा है R1 से, तो R2 क्या बना है, कॉनकेव माने हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये तो बहुत काम का चीज बता दी आपको हम, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्लेन का तो होता ही है रेडियस इनफिनाइट, उससे तो बेसी रेडियस होगा नहीं, इसलिए इसको प्लेनो कन्वेक्स कर दिए, इसको प्लेनो कनकेव कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप सारे लेंस में देख रहे हैं कि एटलीस्ट एक सरफेस तो उसका कर्व है। तो कोई ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो, चाहे वो ग्लास का बना हो, चाहे वो एयर बबल हो, लिक्विड बबल हो, है ना, कुछ भी हो, अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वह ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर कर्व सरफेस रख रहा है, एक सरफेस अगर कर्व हो रहा है उसका, तो इसका मतलब वो लेंस है, ठीक है। एक सरफेस कम से कम उसका कर्व होना चाहिए। ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो, या ट्रांसपेरेंट ना कह के रिफ्रैक्टिंग मीडियम कहिए तो अच्छा है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम कहिए, और उसका एक सरफेस अगर कर्व है तो उसको हम लेंस बोलते हैं। एटलीस्ट वन सरफेस, एक कर्व हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, या दोनों कर्व हो सकता है। तो अभी जो हम ले रहे हैं दोनों कर्व का ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक कनकेव सरफेस लेंगे इस टाइप का, ठीक है, और ये जो है आपका डेंसर मीडियम होगा, ये पूरा जो है ये डेंसर मीडियम है, और ये आपका μ1 होगा, ये μ2 होगा, और जो एयर होगा वो μ1 होगा, ठीक है। तो इस केस में देखने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें अजम्पशंस वही रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वगैरह जो अजम्पशंस है वो हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ भी थीन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, और अपर्चर बहुत छोटा है, ये सब एजम्पशंस जो बताए हैं वो एजम्पशंस लेके चल रहे हैं यहाँ भी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और कोन को जो मिलाता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसको x1 कह दिए, इसको p1 कह दिए, इसको y1 कह दिए। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं c1 होगा, और ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक। तो इस केस में अगर हम इस पॉइंट को नॉर्मल मान लेते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ठीक। तो इस पॉइंट से जो इंसिडेंट रे होगा ऐसे, एक्चुअल में इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज बनाएगा, ये फाइनल इमेज। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसका काम पड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले आप इसको नाम देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को अल्फा लिखिएगा, इमेज को आप क्या लिखिएगा, बीटा, इसको क्या लिखिएगा, गामा। तो जैसे आप लोग मेजरमेंट करते थे कि ये आई है, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं इसको, tan अल्फा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, tan बीटा, और ये आप इसको परपेंडिकुलर मानते थे, है ना, इसको क्या लिखते थे, एल और एम, तो यहाँ हम लिख देंगे LM बाई, क्या लिखेंगे इसको, P1, और चूंकि हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं, ये अल्फा ले रहे हैं, तो अल्फा की जगह पर LM बाई PO लिखेंगे, ठीक है। और इसको बीटा ले रहे हैं इमेज का, तो LM बाई क्या लिखेंगे, MI, चूंकि बहुत नज़दीक है इसलिए LM बाई क्या लिखिएगा, P1O, और प्लस LM बाई, अच्छा ये PI होगा, बीटा ले रहे हैं ना तो I होगा। इसको हम फिलहाल I डैश मान रहे हैं, I डैश, ठीक है, प्राइम भी बोलते हैं इसको। तो P1 और I डैश, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेकंड एंगल देखते हैं, ये R देखते हैं, तो R देखिएगा तो फिक्स्ड रियल एंगल है किसके लिए, अब
एक चीज रुक जाइए थोड़ा, हम लोग ट्रायंगल क्या लिए थे, LOC। तो ट्रायंगल देखिए भूल गए तो गड़बड़ा गया ना, ट्रायंगल LOC बन, ठीक है ना, LOC बन। तो इसके लिए एंगल है ना, तो ये गामा होगा। अब गामा में होगा यहाँ क्या, PMC1, और तब ये हो जाएगा आपका P1C1। इसलिए कहते हैं नाम को छेड़छाड़ मत कीजिएगा आप, ठीक ना। ट्रायंगल LO और I डैश, LOC था ना, एक था LIC और एक था आपका LOC। तो LI डैश और C1, LI डैश C1 देखिए, ठीक है। तो अब इस केस में आप देख लीजिएगा, इस केस में कि कौन सा एंगल आपका रिफ्रैक्शन एंगल होगा। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, तो R ये होगा, ये नहीं होगा, ये I ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल से एंगल होगा R, ये नॉर्मल लाइन है, ये देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल लाइन R होगा। तो गामा इस केस में आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो tan R होगा और प्लस सॉरी R गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, लेकिन हम लोग को तो R लिखना होता है, तो गामा माइनस बीटा, इसको लिखेंगे tan गामा माइनस tan बीटा। तो गामा को लिखिएगा, चूंकि C होता है, गामा कहाँ होता है C1 पे, तो MC1 लिखिएगा, माइनस tan बीटा होता है LM बाई, ये आपका हो जाएगा MI डैश, ठीक। तो M तो लिखते नहीं है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे P1, तो P1C1 हो जाएगा माइनस LM, और क्या हो जाएगा P1 और I डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब यूज करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये जो मेथड हम चल रहे हैं अभी, एक्चुअल में ये एब इनिशियो मेथड है, एब इनिशियो मेथड। आप इसका इस्तेमाल ना भी करके बना सकते हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो रटना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है, जो हमको पसंद नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा लंबा जा रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट जाना होगा तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, दोनों फॉर्मूला को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा इससे चलने से याद नहीं करना पड़ता है, बस इसके लिए कर रहे हैं। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या पढ़ते हैं आप लोग, साइन आई बाई साइन आर, और सिमिलरली क्या लिखेंगे म्यू2 बाई म्यू1। थोड़ा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो म्यू1 आई हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा म्यू2 आर हो जाएगा। तो आई की जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इतना लंबा हम ले जा रहे हैं, वो आपको जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा उसी का केवल काम है, कुछ और का काम नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज वी नो दैट करके, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मार्क्स कटेगा आपका, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अलाउड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए अलाउड। क्योंकि हमको याद रहता नहीं है तो ये मेथड सिखा देते हैं ताकि आप लोग को भी सुविधा हो। तो म्यू1 बाई P1O, देखिए बस इतना ही रिजल्ट हमको लाना था, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई मार्क्स उस कटने का जगह नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्क्स कटेगा, बस ये रिजल्ट हमको चाहिए था। इक्वेशन ए, ये आपको उस समय जब हम इक्वेशन ए लिख रहे थे तो उस समय बताए थे भी कि ABCD कीजिए, तो हमको इससे ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं था। इसको अभी एक और थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, तो म्यू1 बाई P1O और माइनस से प्लस हो जाएगा ये म्यू2 बाई P1I डैश इज इक्वल टू म्यू2 बाई P1C1 माइनस म्यू1 बाई P1C1। एक और थोड़ा लंबा ले जाइए, P1O प्लस क्या कर लीजिएगा म्यू2 बाई P1I डैश इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई P1C1। इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या अब आते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके लिए हम थोड़ा अलग एक बनाते हैं। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जैसे ही आप डालिएगा इस तरह का, है ना, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका ले लिए, और ये सब फिर मीडियम नहीं रहेगा, तो जो बॉन्ड हो गया तो मीडियम नहीं रहेगा। तो ये आपका अंदर में म्यू2 है, बाहर में क्या है म्यू1 है। थोड़ा लेंस चढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग संभाल लीजिएगा इसको, है ना। इसको थोड़ा हम ठीक ही कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, लेंस ठीक हो जाएगा, है ना। और इसमें तो अंदर मीडियम है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं C2 इधर हो गया,
अब जो नॉर्मल बनेगा इसका, नॉर्मल जो बनाइएगा वह नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल देखिए, ये पॉइंट पे नॉर्मल होगा ऐसे, है ना, ये नॉर्मल होगा। अब सावधानी से समझना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है। पहला तो ये वर्चुअल, अब ऑब्जेक्ट अब रे हो जाएगा ये, क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज ये कहीं इधर बनाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो रे इधर जाना चाहिए था, लेकिन और अबे जाएगा और कुछ ऐसे जाए करके फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बनाएगा। ये समझने की बात है कि आई डैश बिहेव्स एज ए virtual object for the I dash behaves as a virtual object or refracting surface x1 p2 by 1 and final image is formed एट आई, ठीक है, आई पे फाइनल इमेज बनेगा। इसलिए P1 P2 यहाँ ना लिख करके बीच में C लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि इसी से हम डिस्टेंस निकाल ले, ये आपका R1 हो जाए, ये आपका R2 हो जाए, इसी लाइन से ये U हो जाए, इधर से V हो जाए, ये V है और ये V डैश है, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका मतलब है, ये V हो जाए। तो इस बात को सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो अभी हम इक्वेशन निकालते हैं फॉर x2 x1 p2 by 1, है ना। कैसे निकालेंगे, अब हमको पहचानना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन है। देखिए ये जो रे आ रहा है ये रे इंसिडेंट रे, और ये जो रे था इधर से इंसिडेंट रे था, ये अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे काम करेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल है। तो जो एंगल होगा आपका आई, ये होगा, ये एंगल, ये जो रेड कलर से बना रहा है ये आई होगा। आर कौन होगा, तो ये नॉर्मल है, देखिए कौन नॉर्मल है, ये ब्लू वाला, तो ये आपका आर होगा ऐसे। और इस सरफेस के लिए जो आप जो बनाइएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा, इसको आप एल डैश कर दीजिए और इसको एम डैश कर दीजिए, ठीक है। तो अब इस केस में ये कौन है, ये आपका बीटा जो एंगल है इस केस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये इमेज बना, देखिए अब ये इमेज बना तो इसको बीटा डैश लिखेंगे, थोड़ा नाम चेंज करना होगा, और ये एंगल को गामा डैश कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पहुंच हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा ये, ठीक है। चलते हैं अब, और किसके लिए, x1 p2 by 1 के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ट्राइंगल एल डैश माने एल डैश आई डैश, ठीक है, एल ओ सी लिखे थे तो यहाँ पे C2 होगा, थोड़ा नाम तो चेंज हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि O के जगह पर अब ट्राइंगल, एक्चुअल में ट्राइंगल LOC ही है, ट्राइंगल LOC ही है ये, और O डैश क्या, आई डैश क्या, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और आई डैश ऑब्जेक्ट हो गया, एल डैश लिख दिए, क्योंकि नाम चेंज कर गया इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत, लेकिन ट्राइंगल LOC ही है ये। तो ट्राइंगल LOC में ही हम चल रहे हैं, LOC कौन है, एल डैश, O क्या है ये, और C ये। तो इस ट्राइंगल में, इस जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ये आई आपका एक्सटीरियर एंगल है, देखिए, और गामा डैश और बीटा जो है इंटीरियर एंगल है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आई जो है इस केस में एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, तो आई जो होगा इसके बराबर हो जाएगा गामा डैश बीटा प्लस गामा डैश, तो आपको यहाँ हो जाएगा एल डैश एम डैश कर दीजिए, एल डैश एम डैश बाई आपका बीटा है ना, तो बीटा डैश है, हाँ बीटा डैश, ठीक है, एक मिनट देखते हैं, हाँ बीटा है, केवल डैश नहीं है। हम क्या ले रहे हैं, ये एक्सटीरियर ट्राइंगल कौन ले रहे हैं, एल डैश आई डैश C2, ठीक है, मतलब LOC, ये O है, एक्चुअल में ये O है, O डैश कर देते हैं, ठीक है, अब समझने में आसान होगा, एल डैश O डैश और ये C2, ठीक है, क्लियर समझ में आया। तो इस ट्राइंगल में आई जो है
एक्सटीरियर एंगल है दोनों का सम गामा डैश माइनस बीटा के बराबर है। ठीक है, तो लिख दिए उसको हम। तो बीटा जो वैल्यू होगा, बीटा वैल्यू नहीं एक्चुअल में ये हो जाएगा, हाँ बीटा, तो बीटा जो होगा एल डैश एम डैश बाई एम डैश आई डैश, एम डैश आई डैश प्लस गामा डैश लिखे हैं, तो गामा डैश कौन है आपका, गामा डैश ये है, तो गामा डैश जो हो जाएगा एल डैश एम डैश, एल डैश एम डैश बाई एल डैश एम डैश बाई एम डैश सी टू, एम डैश सी टू। और चूंकि हम ऐसे लिख दिए हैं tan बीटा प्लस tan गामा डैश, इसीलिए ऐसे लिखना है, और बाद में ये आई निकल गया आपका। इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं एल डैश एम डैश बाई P1 P2 आई डैश लिख सकते हैं, प्लस एल डैश एम डैश बाई P2 C2 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल लेंगे वही एल आई सी, तो यहाँ लेंगे एल डैश और आई तो आई ही रहेगा और सी की जगह पर C2 रहेगा। ये ट्राइंगल एल आई सी का कंसेप्ट है, वहाँ ट्राइंगल एल ओ सी का था, यहाँ ट्राइंगल एल आई सी का। तो एल डैश आई और C2, इस ट्राइंगल में आर एक्सटीरियर एंगल, आर जो है वो एक्सटीरियर एंगल किसके सम के बराबर है, आर जो है किसके सम के बराबर है, तो आर ये जो है आपका गामा डैश और बीटा डैश के सम के बराबर है। ठीक है, आप इसको डैश भी कह सकते हो क्योंकि अलग लिए हैं, लेकिन खैर आप कितना डैश लगाइएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा गामा डैश प्लस बीटा डैश। तो इसी तरह से tan गामा डैश प्लस tan बीटा डैश। एक्चुअल में ये आपका हम काम कर रही है, होमवर्क में हमको देना था लेकिन हम कर देते हैं। गामा डैश तो एल डैश एम डैश, एम डैश एल डैश एम डैश बाई कितना हो जाएगा एम डैश सी टू, एम डैश सी टू प्लस बीटा के लिए हो जाएगा, बीटा डैश के लिए कि एल डैश एम डैश बाई और कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, बीटा डैश ले रहा है ना, तो एम डैश आई हो जाएगा, एम डैश आई। क्योंकि ये एम को हम नेगलेक्ट करते हैं पी के कंपेयर में, तो इसको आप P2C2 लिखेंगे प्लस एल डैश एम डैश बाई P2I लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब जो है हम लोग स्नेल्स लॉ लिखेंगे, इस सब से तो कोई काम है नहीं इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम इसके लिए सेकंड, इसको तो रहने देना होगा, इसको हटाएंगे अभी, इसको हटाना होगा, ये नहीं मिटना चाहिए, ये आपका मेन है। हाँ, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में लिखते समय एक सावधानी बरतना होगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या सावधानी बरतना होगा, तो आप लिखते हो साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, वेरी गुड, है ना। लेकिन यहाँ जो है इस सरफेस के लिए ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड मीडियम μ1 होगा तब μ2 लिखिएगा, इसमें एकदम गलती होने का चांस रहता है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। तो μ2 इंटू आई हो गया और μ1 इंटू आर हो गया, है ना। तो μ2 जो है, μ2 तो लिखिएगा ही और आई के जगह पर लिखिएगा यार एल डैश एम डैश बाई P2 आई डैश प्लस एल डैश एम डैश बाई P2C2, ठीक है, इज इक्वल टू μ1 इंटू आर का क्या लिखे हैं एल डैश एम डैश बाई P2C2, ठीक है, प्लस एल डैश एम डैश बाई P2I, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें μ2 को μ2 बाई क्या लिखेगा P2I डैश, ठीक है ना, P2I डैश प्लस μ2 बाई P2C2, P2C2 इज इक्वल टू μ1 बाई P2C2 प्लस μ1 बाई ये क्या लिखे हैं P2I ना, P2I, ठीक है। तो अब ये जो हुआ यहाँ लिखेगा μ2 बाई P2I डैश और इसको तो आप इधर कर लीजिए -μ1 बाई P2I इज इक्वल टू
म्यू वन बाई पी टू सी टू माइनस म्यू टू बाई पी टू सी टू। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में करके तो म्यू टू बाई पी टू आई डैश, तो फायदा है नहीं, लेकिन देखते हैं इसको म्यू टू माइनस म्यू वन के फॉर्मेट में लाना है, बस इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस हो गया, सबका साइन रिवर्स हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब एक बात, जो हम P जो इस्तेमाल कर रहे हैं P1 C1 इस्तेमाल कर रहे हैं, अब P1 C1 को इस्तेमाल ना करके हम अब C के टर्म में लिखेंगे। जैसे μ1 लिख रहे हैं तो P1 को अब C लिख देंगे, कॉमन कर देंगे इसको, और इसको भी अब C आई डैश लिखेंगे। ठीक है। उसी तरह से ये μ2 माइनस μ1 जो हो जाएगा ये C C1 होगा। अब इसको इक्वेशन कोई नाम अभी एक देते हैं, 1 1 2 छोड़ दीजिए, तो माइनस μ2 बाई क्या हो जाएगा, ये C आई डैश हो जाएगा, प्लस μ1 बाई ये C आई हो जाएगा। ठीक है। और इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई C C2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर बी। अब एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा ये, ए कौन सा है, तो μ1 बाई सी ओ प्लस μ2 बाई सी आई डैश इज इक्वल यानी माइनस μ2 बाई सी आई डैश प्लस μ1 बाई सी आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। क्लियर, फर्स्ट क्लास। ठीक है। अब जो है ये और ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब खत्म हो गया ये, तो इक्वेशन जो बनेगा अब जो इक्वेशन बनेगा वह आ जाएगा μ1 बाई सी ओ प्लस μ1 बाई सी आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये अब हम साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम जो इक्वेशन ए और बी निकालने में इतना टाइम लगा है, एनसीईआरटी सीधे इक्वेशन ए और बी लिखा है और जोड़ करके और उसको ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कुछ याद नहीं करना, जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पढ़ाए थे उसी तरह से करते चल जाइएगा तो नहीं गलती होगा। दो चीज ध्यान रखना, एक इस जगह पे याद रखना है, ध्यान रखना है यहाँ पर μ1 बाई μ2 हो जा रहा है, और एक जगह और याद ध्यान रखना है कि जब इसका ये जब लीजिएगा इस डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव ले लीजिएगा, इस डिस्टेंस को। लेकिन खैर उसका तो काम भी अब नहीं पड़ रहा है, तो इतना शॉर्ट कर दिए कि उसका काम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें काम पड़ेगा। जब डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कीजिएगा तो वो दो चीज़ें काम पड़ेगा, लेकिन इस मेथड में तो उसका काम भी नहीं पड़ेगा। तो सी आई जब लीजिएगा यार, तो सी आई आपका भी हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है और ये भी इधर है, इसलिए तो R1 जो आपका है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो C1 लिख रहे हैं C1 प्लस R1 और C2 जो है माइनस R2। तो जो फॉर्मूला अब बनेगा माइनस μ1 बाई भी प्लस μ2 बाई भी और इज इक्वल टू μ1 बाई भी और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला आपका निकलता है फाइनल, है ना। यही लेंस मेकर फॉर्मूला अभी बन रहा है। अब सभी को μ1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस u प्लस 1 बाई भी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ये क्या बन जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में ये होता है कि ऑब्जेक्ट को आप रखिएगा F पे
और भी जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। मतलब अगर कोई लेंस ले रहे हैं आप, तो यह लेंस का जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस पर ले लीजिए और इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। तो जो ये कहलाएगा उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस केस में आप ये इक्वेशन को इस्तेमाल कीजिएगा तो -1/u क्या लिखे हैं, f1 लिखे हैं, और v क्या लिखे हैं आपका, v लिखे हैं ये -f1 होगा ना, हाँ -f1 प्लस v होगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2। तो ये जो वैल्यू आएगा 1/f1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए फॉर्मूला हुआ। उसी तरह से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लिखिएगा, प्रिंसिपल फोकस लिखिएगा। तो इस केस में u को जो है इन्फिनिटी पे लेना होता है और v कहाँ बनेगा, तो f2 पे बनेगा। ठीक है, मतलब इस केस में जब आप देखिएगा तो कहीं से भी रे आ रहा हो तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग कहलाता है। हाँ, एक और बात बताना भूल गए कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है क्योंकि ये पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो ये जो फोकल लेंथ होगा इसको f2 कहेंगे। तो एक एक्चुअल में यही है प्रिंसिपल फोकस। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना, 1/u को क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो इन्फिनिटी को निगेटिव क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो 1/f2 इक्वल टू क्या लिखेगा, μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ, तो इस केस में देखिएगा कि f1 और f2 दोनों इक्वल है और इसको मान लेते हैं कि लेट, तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला आया μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2, इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला को एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला का बहुत यूज है। कैसे यूज है, जैसे 1/f ले रहे हैं आप इक्वल टू कितना ले रहे हैं, μ2 माइनस μ1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये ध्यान देना होगा कि μ2 तो अभी हम ले रहे थे डेंसर मीडियम, ठीक है, लेकिन अगर तो ये तो बिहेव जो करता है वही करेगा, मतलब f जो हमेशा आएगा पॉजिटिव आएगा इस केस में। तो ये तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। लेकिन अगर μ1 बड़ा हो जाए μ2 से तो f क्या आ जाएगा, निगेटिव, है ना। तो निगेटिव आ जाएगा तो इसका बिहेवियर चेंज कर जाएगा, है ना, बिहेवियर कैसा होगा, चेंज कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ अगर आता है तो कन्वेक्स लेते हैं, निगेटिव आता है तो क्या लेते हैं, कनकेव लेते हैं। तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोनों के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि सेम को प्रूफ कीजिए किसमें, कॉनकेव लेंस में। ये आपका होमवर्क है, जितना हमसे मेहनत करवाए हैं तो ये आपका होमवर्क रहेगा कनकेव लेंस के। एक होमवर्क ये रहा और दूसरा होमवर्क ये डायरेक्ट मेथड जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का डायरेक्ट मेथड, वो भी आप कर लेंगे ताकि वही मेन एग्जामिनेशन में उसी से लिखिएगा। ये तो समझने के इतना बता दिए हम, लेकिन डायरेक्ट जो ये डायरेक्ट मेथड है, दो इक्वेशन को जो ए और बी का इक्वेशन आता है सीधे फाइनल वो इक्वेशन लिखिए और थोड़ा थ्योरी लगा दीजिए कि फर्स्ट सरफेस ये काम करता है, सेकंड सरफेस ये काम करता है, वो थ्योरी लगा दीजिए और डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स बनेगा, कब क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा तो हम लोग लाइव क्लास में देखें। अगर हम एक और यहाँ बात समझे कि अगर इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दे, इस इक्वेशन को देख रहे हैं एक्चुअल में इसको गॉसियन इक्वेशन कहते हैं, है ना, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन कहते हैं इसको ये इक्वेशन का कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन को नाम देते हैं क्या, कोई नाम दे दीजिए, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन P एंड Q, फ्रॉम इक्वेशन P एंड Q क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यही तो लेंस इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन, ठीक। ये आपका लेंस इक्वेशन हो गया, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हुआ।